क्यों होती है और what are the benefits are behind the share storage management. So in any point that you want to add, what you think about the share storage with virtualization? या कितने तरीके की स्टोरेज सर्विसेज हम मैनेज कर पाते हैं अपने VMware इन्वायरमेंट के अंदर? एनी आइडिया? एनी शेयर मींस स्टोरेज एसक्यूजी और मतलब प्रोटोकॉल है शेयर स्टोरेज मतलब हाँ कम्युनिकेट करने के लिए हाँ exactly. ISKZ is the type of protocol that help us to provide the communication between two different uh, स्टोरेज एंड ESI resources. होस्ट राइट राइट So let's take an example. This is our ESXi host, right? This is our ESXi host, and we already established multiple share storage. For example, this is our share storage, right? And in the share storage, it's mandatory for us. We must need to decide the space. For example, हमने यहाँ पे एक space decide करके रखा है, maybe approximately 2 TB. This is the share storage. And इस share storage से हम अपने ESXi host को, if we have a multiple ESXi host, we can assign the space. We should know about the components which are involved in case of managing share storage. So कुछ components हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है. We just need to perform the task according to the services. Like started from, we should know about what is share storage. The first and important part, share storage क्या है. Then we also need to know about data center, and data center or data store. Next, our responsibility, we should know about disk. We should know about logical unit number. And then we also need to know about the concept of RDM, raw disk mapping, जिसको हम बोलते हैं RDM. And one more point just wanted to add related to ISKZ and NFS, because these two important protocols can help us to manage our share storage. अब क्वेश्चन ये आता है, why it is important, why we need to configure share storage in our environment. VMware की environment में share storage की requirement क्यों होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए. So n ओके number of reasons that help us to describe about the importance of share storage, जिसमें से अगर आपके पास share storage नहीं है ना, we are unable to perform the task of vMotion. Share storage is important for vMotion. We can use it for the SVMotion. It is applicable for HA. It is applicable for DRS. It is applicable for fault tolerance as well. राइट. अगर आपको ये सभी टास्क परफॉर्म करने हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हम अपने वर्चुअल मशीन्स को, जो वर्चुअल मशीन्स हम तैयार करने वाले हैं, द वर्चुअल मशीन्स मस्ट बी अवेलेबल इन ESXi होस्ट. ये सभी ESXi होस्ट के अंदर मीन्स हम वर्चुअल मशीन्स को क्या कर सकते हैं, ऐड करने का काम करते हैं. Share storage must contain these types of virtual machine. Then we are able to perform the task of vMotion, SVMotion and HA and DRS. ये सभी टास्क हम तभी कर पाएंगे जब हमारी VMs जो हैं शेयर स्टोरेज का पार्ट रहेंगे, शेयर स्टोरेज का मेंबर रहेंगे. All good? ओके ओके Now let's talk about data store या disk या LUN. RDM हम इसके बाद बात करेंगे. डेटा स्टोर, डिस्क, लन और जो अदर पार्ट है उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए. सो दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 2 TB, और इस 2 TB का स्पेस में से आपने डिसाइड किया आई वांटेड टू शेयर लाइक एज अ 500 gig space, right? You decided to share 500 gig space to our ESXi host, राइट. और आप एक ही स्टोरेज को ना दो अलग अलग ESXi के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, दो अलग अलग ESXi के साथ आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है गॉट यहाँ तक? ठीक है नाउ नेक्स्ट, अब जो स्पेस आप कट करते हो, जैसे यहाँ पे हमने 500 गिग का स्पेस कट किया
2 टीबी में से, तो ये जो स्पेस आपने कट किया ना, इसको हम बोलते हैं लन, लॉजिकल यूनिट नंबर। इस पीस ओके को इस पीस को जो पीस हम शेयर करना चाहते हैं, इस पीस को हम मैनेज करते हैं, इस पीस को हम कंसीडर करते हैं एज ए लॉजिकल यूनिट नंबर। दूसरा, अगर ये सेम पीस आपने डायरेक्टली ESXi को असाइन कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ESXi में ये स्पेस दिखाई पड़ रहा है, इस डिस्क के स्पेस, सॉरी, इस स्पेस को जब आप यहाँ मैच करेंगे ना, तो ये कहलाएगा डेटा स्टोर। मींस स्पेस वही है 500 गिग का, बट आप ESXi से जब उसको जोड़ेंगे ना, तो ये क्या कंसीडर कहलाएगा, एज ए डेटा स्टोरेज। ओके नॉट स्टोरेज, डेटा स्टोर कंसीडर किया जाएगा। और सेम आपने इस 500 जीबी में से आपने डिसाइड किया, 25 जीबी आपने किसको दे दिया, अपनी वर्चुअल मशीन को दे दिया। तो जब आप डिस्क की इस डेटा स्टोर में से स्पेस को असाइन करेंगे किसी VM को, तो वो जो स्पेस रहेगा ना, वो कंसीडर किया जाएगा एज ए डिस्क। ओके मतलब अगर हम देखें तो 1, 2, 3, ये तीनों चीजें एक ही हैं, बट अलग अलग लोकेशन पे इनका टास्क अलग हो रहा है, अलग अलग लोकेशन में इनकी जो यूज केसेस है ना, वो डिफरेंट हो रही है। ओके डेटा सेंटर मींस शेयर स्टोरेज से उठाया स्पेस, उसको हम लन बोलेंगे। उसी स्पेस को हम डायरेक्टली अपने ESXi को असाइन किया, ESXi के लिए डेटा स्टोर कहलाएगा। उस डेटा स्टोर में से छोटा सा पार्ट हमने वर्चुअल मशीन को असाइन किया, वो हमारा डिस्क कहलाएगा। ऑल गुड। यस चलो, थ्योरेटिकल में हम RDM को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कंसीडर एज ए रॉ डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। RDM, रॉ डिस्क मैनेजमेंट। द मीनिंग ऑफ रॉ डिस्क, बहुत ही ज्यादा इस पे इश्यूज आते हैं रॉ डिस्क मैनेज करने के लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं RDM को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन, किसी भी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कोई भी क्लाइंट RDM को क्यों कॉन्फ़िगर करेगा, और इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके सिंपल सा फंडा है। जब आपने 500 जीबी यहाँ से डिसाइड कर लिया है, तो विच इज अ शेयर स्टोरेज में से यस आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू असाइन 500 गिग स्पेस। जब आप ये 500 जीबी का स्पेस अपनी वर्चुअल, सॉरी, ESXi को ना दे करके, थिंक अबाउट, आपने ये 500 जीबी इससे यहां से तो कट कर लिया, बट आपने किसी ESXi को इसको असाइन नहीं किया, ओके आपने डायरेक्ट इस स्पेस को अपनी VM को असाइन कर दिया। ओके मतलब ये पूरा का पूरा 500 जीबी का स्पेस ये डिसाइड करेगा कि कैसे यूज करना है। वर्चुअल मशीन कैन डिसाइड कि उसको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। ओके इस पार्ट को बोला जाता है RDM। अब क्वेश्चन आता है, इसकी मेरिट और डिमेरिट, इसके बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, राइट। बेनिफिट्स, जितने भी डेटा सेंटर आप VMware में कॉन्फ़िगर करोगे ना, अगर आपको टास्क मिलता है किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ओरेकल हो गया, या फिर आपके पास माई हो गया या सिक्वल हो गया, किसी भी तरीके के डेटाबेस को अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, सो उस केस में यू ऑलवेज प्रोसीड विद RDM, रॉ डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इसको आप मैनेज करेंगे। ओके क्लियर? या ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड। यहाँ पे हम बात करते हैं, दिस इज RDM डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर वर्चुअल मशीन। डेटा स्टोर डायरेक्टली हमने इसको कनेक्ट कर रखा है विद आवर ESXi होस्ट, एंड फ्रॉम द सेम ESXi में जो मैप किया है स्पेस ना, उसको जब हम अपनी वर्चुअल मशीन को असाइन करते हैं, विच इज कंसीडर एज ए डिस्क। ऑल गुड ओके अबाउट दिस पॉइंट? ये क्लियर है यस अभी जितने भी यस पॉइंट हमने डिस्कस किए? यस क्लियर है राइट। तो या ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस पार्ट। स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करते हैं ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर देन वंस वी कंप्लीट द पार्ट, विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके
ओके, सो वी हैव अ मल्टीपल मेथड टू कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज। अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हम शेयर स्टोरेज को मैनेज कर पाते हैं, एंड वी कैन आल्सो मैनेज आवर शेयर स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ ओपन फाइलर, या जो अलग अलग डेल के सर्वर्स होते हैं, डेल के स्टोरेज होते हैं, उनके थ्रू भी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उस वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सेटअप कर रखा है। फाइन। तो अभी वी आर Yeah, इन fine. ट्रेनिंग, तो आई ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन हाउ टू सेट अप आवर शेयर स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ ओपन फाइलर एज वेल, क्योंकि कई सारी कंपनियां जो है ओपन फाइलर का भी इस्तेमाल करती हैं। बट आज के डेट में ज्यादातर जो कंपनीज है ना, वो अपना डेल के सर्वर्स ले लेती हैं, जो डेटा सेंटर्स ले लेते हैं डेल ईएमसी के, या अपना खुद का स्टोरेज बना लिया, तो उनको उनके खुद के सॉफ्टवेयर से वो मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये ESXi होस्ट है, दिस इज अवर ESXi होस्ट, एंड वन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अवेलेबल, जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं एज ए शेयर स्टोरेज। 192.168.1.5 जिसकी ESXi होस्ट की IP एड्रेस है। लेट मी कनेक्ट विद एनी ब्राउजर, यहाँ पे हम किसी भी ब्राउजर से कनेक्ट कर लेते हैं, एंड देन ट्राई टू मैनेज द सर्विसेज रिलेटेड टू स्टोरेज। हम अपने शेयर स्टोरेज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। This is our another ESXi. Actually, what happened with the previous ESXi that I installed, I forget the password. So reset करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीन्स इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा. So let me select our another ESXi to manage our share storage services.
192.168.1.78. This is the IP address for our ESXi host. And I'm just going to connect our ESXi, and let's try to understand about the procedure to manage the shared storage. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ पार्ट हम अभी कवर करेंगे, कुछ पार्ट हम अपने vCenter सर्वर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं vCenter सर्वर के थ्रू मैनेज कर पाते हैं, और कुछ कुछ सर्विसेज हम अपने और डायरेक्टली ESXi के इन्वेंटरी से कर पाते हैं। तो सो स्टिल वी आर ऑन पेज ऑफ ESXi, क्योंकि ये सभी पॉइंट पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही हम अपने शेयर स्टोर सॉरी vCenter सर्वर पे जाएंगे। लेट्स टॉक Okay. अबाउट द स्टोरेज। तीन अलग अलग स्टोरेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से एक अननोन है विच इज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ स्पेस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। दो यहाँ पे स्टोरेज हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ द स्टोरेज आर कंसिडर एज ए लोकल। ये दोनों स्टोरेज जो 80 GB एंड 250 GB का स्पेस हमें दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों ही स्टोरेज हमारे लोकल स्टोरेज हैं, एंड इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वी ऑलवेज यूज द शेयर स्टोरेज। कभी भी हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते। लेटेस्ट ESXi पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो लेटेस्ट ESXi है, हमने इस पे प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया था कि जो ओल्ड ESXi होस्ट थे अपने पास, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम 5.5, 6.0, 6.5, इवन 6.7, एंड यस 6.7 तक, इतने ये जो हमारे पास ESXi होस्ट थे ना, इन ESXi में जो आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज सेम स्टोरेज दैट वी यूज्ड फॉर ESXi OS फाइल। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. आपने एक ESXi डिजाइन किया, इनमें से किसी का भी सिलेक्शन करके ESXi डिजाइन किया, एंड 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, इनमें से किसी भी ESXi का इस्तेमाल करके आपने सॉरी अपने बेयर मेटल पे अपने ESXi को इंस्टॉल किया, और बेयर मेटल में जो आपने हार्ड डिस्क डिसाइड किया है ना, द हार्ड डिस्क दैट यू डिसाइडेड फॉर टू इंस्टॉल अवर ESXi 1 TB का स्पेस था। एंड यू नो दैट जो ESXi के OS हैं या सॉफ्टवेयर है ना, दे आर वेरी लाइट वेट। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इनके कंजप्शन की बात करें तो हार्डली मैक्स टू मैक्स 20 GB, 20 GB तो बहुत ज्यादा हो गया, 15 GB के आसपास ये स्पेस कंज्यूम करते हैं। आप इनमें से कुछ भी इंस्टॉल करोगे, कोई से भी आप स्पेस आप सॉरी ESXi इंस्टॉल करोगे, मैक्स टू मैक्स ये 20 GB के का स्पेस ही कंज्यूम करेगा। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू द हार्ड डिस्क दैट वी डिसाइडेड, हमारे पास तो 1 TB का स्पेस है। अब इस 1 TB में अगर हम 100 GB का भी स्पेस ESXi को निकाल देते हैं, तो वी हैव अ 900 GB ऑफ स्पेस। और ये 900 GB का स्पेस आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? टू यूटिलाइज फॉर द वर्चुअल मशीन। आप अपने VMs को क्रिएट कर सकते हो और अपने VM को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑल गुड। Yeah. लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट ESXi की, ESXi 7.0 के बाद की, अगर हमारे पास एक ESXi है 7.0 या 8.0 की, हमारे पास ESXi होस्ट आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, सेम 1 TB का स्पेस आपने दे रखा है विच इज अ फाइनल डिस्क स्पेस, एंड यू एस्टैब्लिश योर ESXi मे बी 8.0 या 7.0। सो इन दिस केस ये जो स्पेस है, नो मैटर कि आपके पास कितने परसेंट स्पेस अवेलेबल है, वी आर नॉट ऑथराइज टू यूटिलाइज द सेम हार्ड ड्राइव टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। आप इसमें तब तक वर्चुअल मशीन नहीं बना पाएंगे जब तक आप एक नया स्टोरेज इसमें अटैच नहीं कर देते। बिकॉज जब आप Okay. ESXi को इंस्टॉल करोगे ना, सो इन केस ऑफ ESXi इंस्टॉलेशन, इसमें जो हार्ड डिस्क आपको दिखाई पड़ रही है लोकल स्टोरेज 80 GB, और ये VCS है 250 GB। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे देखोगे ना, तो आई हैव ऑलरेडी एडेड मल्टीपल हार्ड ड्राइव। यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर देखो, दिस इज फर्स्ट हार्ड ड्राइव दैट आई यूज टू इंस्टॉल आवर ESXi। उसके बाद ये दूसरी ESXi होस्ट की IP स्टोरेज है, और ये 250।
मतलब ये डिस्क का इस्तेमाल नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई आई एडेड 80 gig and 250 gig hard drive as a local storage. Is that clear? Yeah. Now, one more point just wanted to add, go to the host. It will give you the information about your storage. यहाँ पे अपने पास जो storage है, that consumed by our ESXi host, sorry, it will not give you the information about the storage that you use to install the ESXi. ये हमारा दूसरी हार्ड डिस्क है जो हमने 250 गिग की हार्ड डिस्क जो अटैच कर रखी है ना, उसकी स्पेस के बारे में बता रहा है कि आपके पास इतना कंज्यूम हो चुका है और ये रिमेनिंग स्पेस आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेस मशीन है हमारा जिस पे ESXi इंस्टॉल है, उस बेस मशीन, उस ESXi की जिस मशीन के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है, जिस हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल किया है, उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा 7.0 के बाद से। ऑल गुड? Yeah. Please show us how you connected this storage Okay. practically. Yeah, sure. So these all are the kind of local storage. So local storage in the sense bare metal में हमें नई हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी। We establish our environment using kind of a VMware workstation. So let's take an example. I'm going to add one more hard drive with capacity of 25 gig. So ये virtual environment है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी हार्ड डिस्क इसमें दे सकते हैं। मेक श्योर यू हैव अ इनफ स्पेस इन द बैक एंड। जो आपका बेस मशीन है उस पे हार्ड डिस्क का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। सो राइट क्लिक ऑन योर ESXi, गो टू द सेटिंग, इन द VMware वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, ऐड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डिस्क, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाउ मच? आई वांटेड टू ऐड 15 gig ऑफ स्पेस ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज। अभी हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड ओके। We successfully added 15 gig of hard drive for our ESXi host. And now this is our virtual machine. So maybe कि हमें इसको restart करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि by default ये हमें access 15 gig की hard disk का space नहीं देगा। Space हम utilize नहीं कर पाते because we need to restart our computer. New The data store. Yeah. storage स्टोरेज से कैसा कनेक्टिविटी देते हैं VMs को? अभी ये लोकल है, अभी ये लोकल है। इसके बाद हम जो शेयर स्टोरेज है ना, उस पे हम एक बार डिस्कस हाँ, करेंगे। अच्छा, ओके। दिस इज द लोकल, लोकल इन द सेंस कि हमने मार्केट से हार्ड डिस्क खरीदी, जिस ESXi मशीन पे हमारा, जिस मशीन पे ESXi इंस्टॉल है उसी पे हमने एक दूसरी हार्ड डिस्क लगा दी, विच इज लोकल। एंड शेयर में क्या होता है, शेयर स्टोरेज में क्या होता है कि यू ऑलवेज प्रोसीड विद एटलीस्ट वन सैन स्टोरेज। आपको अपने इन्वायरमेंट में एक सैन स्टोरेज लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अकॉर्डिंग टू द सैन स्टोरेज यू कैन प्रोसीड विद दैट। सैन स्टोरेज उसमें से छोटे छोटे पार्ट आपको डिस्कनेक्ट करके देगा, छोटे छोटे पार्ट क्रिएट करके देगा, जिसकी हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट को स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं सैन स्टोरेज? या श्योर, आई एम गिविंग यू द कंप्लीट डिटेल। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है शेयर स्टोरेज को, तो इसमें हम वो सारी चीजें कवर करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने बेसिक टास्क परफॉर्म किए हैं, बेसिक डिस्कशन किए हैं। सो लेट्स टॉक ओके। अबाउट द गैप बिटवीन सैन स्टोरेज एंड NAS स्टोरेज। दो चीजें होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। यस, आई फॉरगेट टू ऐड मेंशन सैन एंड NAS। थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, द गैप बिटवीन सैन स्टोरेज एंड NAS स्टोरेज। In case of storage management, we have a two different part, SAN और NAS, दो अलग अलग पार्ट है। Let's take an example. आपने एक storage establish किया, this is our storage device. Yes, it's a type of storage device with
capacity of 100 TB. Let's take an example. The capacity of this storage is approximately 100 TB. Multiple machines are available in premises. It may be SQL Server, it may be web application server. Yeah, maybe we have a ADDS server. With the help of our SAN storage, with the help of storage, you wanted to distribute the space to all the computers. ये सभी physical machines available हैं. Okay, so ये uh, बीच में switch है क्या सर? this is switch. Yeah. Just allow me 1 minute, please, guys. Just 2 minutes, please. Yeah, everyone, can you hear me? Yeah. ठीक है. सो सैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे. दिस इज द स्विच. और जब आप सैन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, सो इट्स मैंडेटरी कि आपको अपने सैन की एक आईपी एड्रेस डिसाइड करनी पड़ेगी. लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ /1.25. ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विथ सेम नेटवर्क. स्विच से कनेक्टेड है. हर एक सिस्टम की अपनी पर्सनल आईपी एड्रेस है. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट आईपी एड्रेस 10 20 समथिंग करके. नाउ the meaning of SAN, which is considered as a block based storage. SAN को हमेशा हम कंसीडर करते हैं एज ए ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. डिफरेंस समझिए इसमें. द मीनिंग ऑफ ब्लॉक, 100 टीबी का स्पेस है. आपने डिसाइड किया 2 टीबी स्पेस यू वांट टू शेयर विद आवर SQL सर्वर, राइट. 1 टीबी रिक्वेस्टेड बाय वेब सर्वर, 1 टीबी रिक्वेस्टेड बाय ADDS सर्वर. तो जो ये स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, द स्पेस कैप्चर्ड बाय द स्पेस मैनेज बाय दिस सर्वर इन फॉर्मेट ऑफ डिस्क. मतलब 2 टीबी आपने सिक्वल को दे दिया, तो इसके लिए एक हार्ड डिस्क की तरीके से 2 टीबी का स्पेस असाइन हो जाएगा. इट मींस दैट सिक्वल मशीन विल डिसाइड कि हमें इस 2 टीबी में कितने पार्टीशन करने हैं. 1 टीबी के 2 पार्टीशन करने हैं, 500 जीबी के 4 पार्टीशन करने हैं. SQL सर्वर इज द ओनर ऑफ इंटायर 2 टीबी ऑफ स्पेस. और जब आप इसको स्पेस असाइन करेंगे तो ये ब्लैंक रहेगा. ब्लैंक इन द सेंस यू कैन कंसीडर इट एज ए
इन फॉर्मेट ऑफ अनअलोकेटेड स्पेस, जिसमें वो डिसाइड करेगा कि उसको कितना स्पेस की अभी जरूरत है, कितना बाद में जरूरत है। ऑल गुड। आईपीस का जरा आईपी एड्रेस हमें स्टोरेज डिवाइस का देना पड़ेगा, और ये स्पेस इस स्टोरेज से यहाँ पे मशीन तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे कि आईएसकेजी, जैसे कि एनएफएस, राइट। ये प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करेंगे टू ट्रांसफर द स्पेस फ्रॉम सैन स्टोरेज टू आवर कंप्यूटर्स, आवर फिजिकल कंप्यूटर्स। ये आईपी कैसा सैन स्टोरेज को असाइन करते हैं? आईपी एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग, जब आप सैन कॉन्फ़िगर करोगे ना, सैन का जब विजार्ड आप एक्सेस करके ब्राउजर पे कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का, क्योंकि सैन में भी एनआईसी कार्ड अवेलेबल रहता है। तो सैन की एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस आप असाइन करेंगे, और उस डेडिकेटेड आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करेंगे। अच्छा, उसमें ये 2 टीबी सैन में कैसा एलोकेट करते हैं? आईएसकेजी प्रोटोकॉल, एनएफएस प्रोटोकॉल अभी अपकमिंग क्लास मींस नेक्स्ट हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप डिसाइड करोगे, असाइन असाइन है ना। असाइन करना है, वो कैसे हम कट करेंगे, किसको असाइन करना हाँ। है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की आईपी की जरूरत पड़ेगी ना। अब सैन की आईपी ये हो गई विच इज सोर्स। अब एसक्यूएल को देना है, वेब को देना है, एडीडीएस को देना है, सब मशीनों की आईपी एड्रेस इनकी खुद की अलग अलग है। तो जब आप असाइन करोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस, रिक्वेस्टर की आईपी एड्रेस पूछेंगे, और उसकी आईपी पे हम इसको क्या करा देंगे, मैप करा देंगे स्पेस, इस स्पेस को, राइट। इस स्पेस को मैप करा देंगे, ताकि ये केवल जिस यूजर को आपने अब अप्लाई किया है, केवल वही यूजर हमारे स्पेस को एक्सेस कर पाए, इस 2 TB के स्पेस को एक्सेस कर पाए। सैन में लन भी आएगा ना? हाँ हाँ लंस आ रहा है, बिल्कुल लॉजिकल यूनिट नंबर भी आएगा, लन भी आएगा। जो ये टुकड़ा हम निकालते हैं ना, जो ये पीस निकाले हैं ना, 2 TB का स्पेस, इसी 2 TB के स्पेस को लॉजिकल यूनिट नंबर बोला जाता है। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लॉजिकल जी। यूनिट नंबर, स्पेस, ये शेयर स्टोरेज, राइट। तो अभी ये क्लियर करो, क्योंकि प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैन। अरविंद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, दिस इज द सैन, एंड लेट्स टॉक अबाउट NAS. The another important part is NAS, network attached storage. सेम यहाँ पे भी हमने एक 100 TB का स्टोरेज परचेज कर रखा है। दिस इज आवर स्टोरेज विद कैपेसिटी ऑफ 100 TB। द टोटल कैपेसिटी है इसकी 100 TB की है, एंड आई वांटेड टू शेयर द सेम स्पेस विद मल्टीपल फिजिकल कंप्यूटर, और मे बी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच जो है हमारी, अलग अलग लोकेशन में हमने ब्रांचेस सेटअप कर रखी है, and we wanted to share the space from our SAN store, NAS storage, sorry. The branches that we established maybe in location of Delhi, in location of Pune, in location of Dubai. अलग अलग लोकेशन में हमने अपने ऑफिसेस सेट कर रखे हैं। Our NAS is connected with switch, and switch is also connected with ISP, इंटरनेट से कनेक्टेड है। Now SAN को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ओके, NAS को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। इट मींस दैट अगर आपके पास इस लोकेशन में कुछ मशीन्स हैं, दिल्ली लोकेशन में, पुणे लोकेशन में, या फिर दुबई के लोकेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर्स है ना, आप अपने इस लोकेशन में, फॉर एग्जांपल विच इज अवेलेबल इन मुंबई, जो हमारा डेटा सेंटर है या स्टोरेज है वो मुंबई लोकेशन में अवेलेबल है। आप अपने इस लोकेशन से, राइट, इन सभी को आईएसपी के थ्रू स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो स्पेस होगा ना, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। मतलब ये जो स्पेस आप मैप कराएंगे, लाइक
2 TB का स्पेस आपने पूरी दिल्ली लोकेशन को दे दिया, 5 TB का स्पेस आपने पुणे लोकेशन को दे दिया और 10 TB का स्पेस आपने दुबई लोकेशन के ऑफिस के लिए असाइन कर दिया, राइट? ये आपने असाइन कर दिया 10 TB का स्पेस अपने दुबई लोकेशन के लिए। Now, so what you need to do in this case, uh, we just need to utilize this space. हम इन स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं किससे? Only and only as a folder format. आप इनको फोल्डर की तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, ना कि हार्ड डिस्क की तरीके से। Got it what I'm saying? Yeah. ठीक है ना? शेयर फोल्डर्स As a map network drive, as a share folder, yes. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि NAS का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है। n नंबर ऑफ एग्जांपल। गूगल ड्राइव NAS का एग्जांपल है, iCloud NAS का एग्जांपल है, वन ड्राइव NAS का एग्जांपल है। बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट गूगल ड्राइव को आप एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वन ड्राइव या iCloud को आप एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप अपने सिस्टम में यूज करोगे उसको इन द फॉर्मेट ऑफ, right, in the format of application as a map network drive. Let me show you. Like in my case, uh, my system is added with my organization OneDrive. ये जो डेटा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारा ऑफिशियली ये सारी की सारी मोर देन 100 GB के आसपास का ये डेटा है, राइट? और ये जो डेटा है हमारा बेसिकली ये वन ड्राइव पे अवेलेबल है। हम इसको कभी भी इसी स्पेस को 2 TB के स्पेस 2 TB का स्पेस हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, बट आई एम अनेबल टू यूटिलाइज द स्पेस इन माय हार्ड ड्राइव। यहाँ पे उस हार्ड स्पेस को नहीं ला सकता, उसमें पार्टीशन करने की अथॉरिटी हमें नहीं है, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ NAS storage which is considered as a network attached storage. All good? Yeah. Yeah. So this is the actual gap. This is the actual gap between what we can say that this is the actual gap between NAS storage and SAN storage. All good? Yeah. Good. ठीक है, ये अपने पास डिफरेंस हुआ। चलिए पहले हम लोकल स्टोरेज को समझते हैं एक बार, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट शेयर स्टोरेज मैनेजमेंट। आ जाते हैं अपने ESXi के इन्वायरमेंट पे। दिस इज आवर ESXi होस्ट पैनल and we just added one storage with 15 gig। हमने इसके अंदर एक हार्ड डिस्क जोड़ा है, हमने इसके अंदर एक हार्ड डिस्क अटैच किया है, एंड लेट मी एक्टिवेट द हार्ड डिस्क दैट वी अटैच्ड। तो ESXi हमारा रीस्टार्ट हो गया और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा जिसके थ्रू हम अपने ESXi होस्ट को ESXi होस्ट को एक एडिशनल हार्ड डिस्क विच इज कंसिडर्ड एज ए लोकल हार्ड डिस्क असाइन कर सकते हैं। गो टू द स्टोरेज, नंबर ऑफ स्टोरेज वही 3 दिखाई पड़ रहे हैं, NFS में 0 है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। अभी हमें 25 गिग का स्पेस नहीं दिखा, जो सॉरी 15 गिग का स्पेस हमें अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। न्यू डेटा स्टोर पे जाते हैं, क्रिएट VMFS पे जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं स्पेस लोकल स्टोरेज। 15 GB का स्पेस जो हमने दिया था वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक नेक्स्ट, लोकल स्टोरेज ऑलरेडी है, लोकल स्टोरेज 2 कर देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट
and finish. ऑल गुड, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। Okay. ठीक है, this is the part of local storage. This is the part of local storage, but we can also manage the share storage, because 90% organization, not 90, 99% organization need to set up their environment with the help of share storage. 99% organization जो है अपने environment में share storage का इस्तेमाल करते हैं। सो वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस, राइट? हमें मालूम होना चाहिए कि शेयर स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंपोनेंट्स लगते हैं टू मैनेज आवर शेयर स्टोरेज सर्विसेज। इज दैट फाइन? Yes. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। Everyone, can we take a break for just 10 minutes and then connect again? Yeah, sure. Okay. Yeah, thank you, Arvind. So let's take a break for 5 minutes, 10 minutes, and we'll continue again.